Hello students, welcome to chapter number 9, coordinate compound. Today our first topic is explain isomerism and its different type. ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, स्टैंडर्ड 9 से आप पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। लेकिन अब तक जो आप पढ़े हो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म था। आज हम पढ़ने वाले थोड़ा सा हटके टॉपिक जिसका नाम है isomerism in complex compound. So what is general definition of isomerism? तो स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म उसकी जनरल डेफिनेशन ये है टू और मोर कंपाउंड which have same chemical formula, two or more compound which have same chemical formula but different arrangements of atoms are there. It is known as isomerism. Okay, so we can say that two or more compounds which have same chemical formula but different arrangements of atoms are there. It is known as isomerism. हम क्या बोलते थे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल डिफरेंट, वो भी चलता है. So two or more compound which have same molecular formula but different structural formula, it is known as isomerism. In this case, complex compound, the isomers having different chemical property and different physical property. Complex compound के isomers में chemical, not only that, physical properties are also different. Basically complex compound के लिए मेन दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म्स होते हैं. For complex compound, different two types of isomerisms are there. First type, it is known as stereoisomerism और दूसरी टाइप का नाम है structural isomerism. How many types of complex compound have isomer? Two type, stereoisomers and structural isomers. Stereoisomerism is further classified in two types, that is GO. That means geometrical isomerism and optical isomerism. तो बच्चों stereoisomerism जो है उसकी दो डिफरेंट टाइप्स होती है. कौन कौन सी? जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें 4 टाइप्स होती है. ओके, कौन कौन सी? LICs. क्या कहेंगे? LICs. L for linkage isomerism, I for ionization isomerism, C for coordination isomerism, and S for solvate isomerism. So complex compound have mainly two types of isomerism is there, stereoisomerism and structural isomerism. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहली टाइप का आइसोमेरिज्म इसे कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसकी जनरल डेफिनेशन ये है, द कॉम्प्लेक्सेस और द कंपाउंड which have same chemical formula. The compound which have same chemical formula and chemical bonds also. Okay, the compound which have same chemical formula and chemical bond but they have different spatial arrangement, different spatial arrangement.
So this type of isomers are called stereoisomers, and isomerism is known as stereoisomerism. Okay, so the compound which have same chemical formula and chemical bond, but they have different spatial arrangement, it is known as stereoisomerism. फिर से एक बार, the complex compound or the compound which have same molecular formula, same chemical bonds, but they have different spatial arrangement, it is known as, क्या कहेंगे उसको, geometrical isomerism. Okay, stereoisomerism. Now, let us see first type of the stereoisomerism. उस first type का नाम है geometrical. लोग उसको geometrical भी बोलते हैं. Geometrical isomerism. Okay. So geometrical isomerism उसकी definition भी यही होगी. Okay. The compound which have same chemical formula and chemical bond, but they have different spatial arrangement, it is known as, क्या कहेंगे उसको, geometrical isomerism. Okay. This type of isomerism arises in heteroleptic complexes. Heteroleptic complexes. हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में इस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो तो लिगेंड की स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से यह आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा. अंडरस्टूड? दिस आइसोमेरिज्म इज जनरली प्रेजेंट इन heteroleptic complexes because if metal possess different types of ligand, so they have different spatial arrangement. उनके पास different types of ligand है तो उनकी different spatial arrangement होगी और इन different spatial arrangement की वजह से ये isomerism देखने को मिलता है. Okay, this type of isomerism present in complexes having coordination number 4 and coordination number 6. ये जो आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है. लेकिन एक चीज याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है. पहली पॉसिबिलिटी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरी पॉसिबिलिटी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर. तो ये जो आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में नहीं, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है. और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसमें भी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा. सो द मेन पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is present in heteroleptic complexes. If coordination number of complex is 4 और उसमें भी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है तो ही ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा. और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मींस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसमें भी देखने को मिलता है. ओके, तो हम वन बाय वन इस आइसोमेरिज्म को समझेंगे. चलो, सबसे पहले स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, उसके लिए आइसोमेरिज्म. सो स्क्वायर प्लानर शेप के लिए आइसोमेरिज्म सोचें तो सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स का मोलेकुलर फॉर्मूला ऐसा है M, फिर आएगा X2 और L2. M is metal, capital X and capital L both are ligands. So अगर स्क्वायर प्लानर शेप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
और 2:2 रेशियो में डिफरेंट लिगेंड है तो इसमें दो टाइप के आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। फिर से स्क्वायर प्लैनर शेप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और लिगेंड रेशियो 2:2 हो तो दो टाइप के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आइसोमर जिसे कहेंगे सिस और दूसरा आएगा ट्रांस। सिस आइसोमर उसका मतलब है इन स्क्वायर प्लैनर शेप if same types of ligand are attached with adjacent position, same type of ligand एक दूसरे के नियर बाय पोजीशन में अरेंज हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे सिस। फिर से same type of ligand having adjacent position, so it is known as cis type of isomer. And if same type of ligand are arranged in opposite position, opposite, तो उसे कहेंगे ट्रांस। ओके, सो सिस टाइप ऑफ आइसोमर और ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर उसमें डिफरेंस ये है कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड नेबरिंग पोजीशन में हो तो उसे सिस कहेंगे और सेम टाइप ऑफ लिगेंड ऑपोजिट पोजीशन में डायगोनल पोजीशन में हो तो उसे कहते हैं ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। ओके, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लिखो, लेकिन आप 11 के चैप्टर 1 में पढ़े थे कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में सिस प्लेटिन यूज होता है। तो मैं आपको प्लेटिन का एग्जाम्पल देने वाला हूं, प्लेटिन। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लेटिन का फॉर्मूला ऐसा होता है पीटी फिर NH3 ट्वाइस बॉक्स कंप्लीट Cl2, इसे प्लेटिन कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, बराबर। तो आप देख सकते हो प्लेटिनम का ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लैनर देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलेगा? स्क्वायर प्लैनर। सो सेम टाइप ऑफ लिगेंड जस्ट लाइक एमाइन, सेम टाइप ऑफ लिगेंड जैसे कि एमाइन और क्लोरीन दोनों एडजेसेंट पोजीशन में है तो इसे कहेंगे सिस टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड फ्रंटियर पोजीशन और डायगोनल पोजीशन और अपोजिट पोजीशन में दिखे तो उसे कहेंगे ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। So स्टूडेंट्स बेसिकली जियोमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं। Ml4 कॉम्प्लेक्स के लिए सिस एंड ट्रांस कितनी टाइप्स के होंगे? सिस एंड ट्रांस। ओके, ये मैंने एग्जांपल दिए यूनिडेंटेड कॉम्प्लेक्सेस के ही। ओके, जहां पे X और L दोनों डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड है। ओके, यूनिडेंटेड का मतलब एक ही बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, उसमें स्क्वायर प्लैनर शेप में दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक सिस और दूसरा क्या होगा? ट्रांस। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसमें लिगेंड की दो डिफरेंट पोजीशंस होती है। पहली पोजीशन सेम लिगेंड का रेशियो 2:4 होना चाहिए या फिर 4:2। ओके, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड का रेशियो होना चाहिए 3:3। तो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर if coordination number is 6, ओके, तो अगर 2:4 रेशियो में डिफरेंट लिगेंड है तो उसका फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स का MX2L4। और अगर 3:3 रेशियो में सेम टाइप ऑफ लिगेंड है तो फॉर्मूला आएगा MX3L3। क्या आएगा?
X3L3। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, बाकी आगे देखेंगे। अगर ये सभी लिगेंड यूनिडेंटेट है, अगर सभी लिगेंड यूनिडेंटेट है तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहली आएगी MX2L4 और दूसरी होगी MX3L3। तो let us see example of MX2L4. okay, MX2L4, ओके, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल शेप, स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में हमें लेना है बच्चों स्क्वायर, सेंटर में हमें लेना है स्क्वायर। ओके, उस स्क्वायर के सेंटर में लेंगे सेंट्रल मेटल M, सेंट्रल मेटल M। अब देखो ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर, उसके सेंटर में मेटल ड्रॉ करके ऐसे अरेंजमेंट कर लो। ओके, उसकी अप साइड 1 और डाउन साइड 1, अप साइड 1 एंड डाउन साइड 1, ऐसे 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप। अच्छा, इस ऑक्टाहेड्रल शेप में रेशियो 2:4 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड नियर बाय पोजीशन में है, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों X और X, ओके, बाकी सभी जगह पे क्या आएगा L L L और L, तो दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन में है तो उसे कहेंगे सिस टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड एकदम फ्रंटियर पोजीशन में हो, जैसे आपने देखा X वर्सेस X, तो इसे कहते हैं ट्रांस टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो फॉर्मूला सेम, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में भी अगर लिगेंड एक दूसरे के साथ है तो सिस, और उसी एक्सिस पर ऑपोजिट पोजीशन में हो तो उसे कहते हैं ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। समझ में आया? ओके, कोई भी एक एक्सिस पर सेम लिगेंड हो तो हो जाएगा ट्रांस। जैसे ये Z एक्सिस है, उस पर मैंने X के सामने X लिया, शायद ये Y एक्सिस हो तो Y के सामने X के सामने X ले। इन शॉर्ट, मेटल की ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों सेम लिगेंड हो, ओके, तो उसे कहते हैं ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर। उसके एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सपोज एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ CO, अब 4:2 रेशियो है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे NH3 4 टाइम्स Cl2। अगर आपने सोचा कि कोबाल्ट का चार्ज +3 है, आगे देखो एमोनिया का चार्ज 0, 2 क्लोरीन का -2, तो 3 में से 2 गया तो पूरा चार्ज क्या होगा +1। सो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज क्या आएगा बच्चों +1। ठीक है, ओके। अब आप ही देखो, इस कॉम्प्लेक्स को मुझे शो करना है तो दो ही टाइप के आइसोमर्स होंगे, पहला क्या होगा सिस और दूसरा ट्रांस। कैसे? ऐसे ही ड्रॉ करो। चलो सपोज मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, ओके, चलो ये स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, उस स्क्वायर के सेंटर में ट्रांजिशन मेटल लेनी है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ कोबाल्ट और कोबाल्ट, उसकी सभी डायरेक्शन में आप देख सकते हो ऐसे बॉन्ड्स आएंगे। इन ऑल द डायरेक्शन देयर विल बी अ बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो अगर दोनों क्लोरीन एटम्स, अगर दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में ले लें, आपने देखा in nearby position we are taking both chlorine atoms as a ligand, पूरा चार्ज +1 है तो आप ऐसा बॉक्स करके +1 कर दो।
तो इस कंडीशन में दोनों क्लोरीन नजदीक है तो इसे कहेंगे सिस टाइप ऑफ आइसोमर, ठीक है। लेकिन अगर वही क्लोरीन लिगेंड उसको मैं एक ही एक्सिस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूं, मेटल की ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूं, so this type of isomer is known as trans type of isomer. Which type of isomer? Trans type of isomer. Understood? So this is called isomerism. It is isomerism present for octahedral shape. तो पहला एग्जांपल हमने देखा octahedral शेप में cis and trans. दूसरी एक एक्सेप्शनल कंडीशन ये है कि कभी कभार डाइडेंटेट लिगेंड ऑक्टाहेड्रल शेप में प्रेजेंट हो तो उसमें भी सिस ट्रांस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। Ml6 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में बाइडेंटेड लिगेंड हो तो उसमें सिस ट्रांस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। लेट अस सी वन एग्जांपल। सपोज कोई मेटल है, उसके पास XX डैश ट्वाइस और L2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल के पास बाइडेंटेड लिगेंड है 2 और यूनिडेंटेड लिगेंड 2 है, तो उसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं, आप खुद भी बना सकते हो। सपोज आई हैव टेकन कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ लेते हैं इथिलीन डाइएमाइन ट्वाइस एंड Cl2, ओके। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल लेते हैं, सपोज कीजिए कोबाल्ट का चार्ज +2, इथिलीन डाइएमाइन न्यूट्रल, 2 क्लोरीन -2, तो ओवरऑल चार्ज 0। तो ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स आपने बनाया। अब शेप तो वैसा ही ड्रॉ करना है लेकिन पूरा ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा। सेंट्रल एटम कोबाल्ट लेते हैं और this is arrangement of octahedral shape. Same way central atom cobalt लेते हैं, this is arrangement of octahedral shape. तो कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन एटम्स हों तो ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है, ओके। और इथिलीन डायमाइन उसको ऐसे लिखते हैं EN, इसको भी ऐसे लिखेंगे EN। तो आपने देखा सेम टाइप ऑफ लिगेंड are present in adjacent position, and that's why this type of isomer is known as cis type of isomer. If same type of ligand are arranged in same type of ligand are arranged in opposite or diagonal position, so it is known as trans type of isomer. तो बच्चों दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, फर्स्ट इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस। ऐसा जरूर नहीं कि यही कॉम्प्लेक्स हो, मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं कि एग्जांपल्स आप खुद बनाना सीखो, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम, मेरी इच्छा है कि प्लेटिनम का चार्ज +4 लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑक्सलेटो ले रहा हूँ OX ट्वाइस और साथ में ले रहा हूँ न्यूट्रल लिगेंड एक्वा H2O ट्वाइस। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 ही होगा ना, क्योंकि ऑक्सलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है, एक्वा यूनिडेंटेड है। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 2 4 + 2 6, ओके। तो ऐसे ही ड्रॉ कर दो, यहाँ पे EN है उसकी जगह पे मैं ऑक्सलेटो लिखूं और H2O लिखूं Cl की जगह पे, तो बनेगा सिस। EN की जगह ऑक्सलेटो मतलब ऑक्स लिखना है और Cl लिखूं उसकी जगह H2O लिखूं तो क्या आएगा, ट्रांस। So this is known as cis and trans type of isomerism. तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पहली पॉसिबिलिटी कंप्लीट हुई, सिस एंड ट्रांस। नाउ लेट अस सी पॉसिबिलिटी नंबर 2।
अगर ऑक्टाहेड्रल शेप में MX3L3 टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड रेशियो 3:3 है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। लेट अस सी एग्जांपल। मैं यहाँ पे सीधा एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे लेते हैं CO NH3 थ्राइस NO2 थ्राइस, ऐसा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से यहाँ पे शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, मैं बोल रहा हूँ उसी मेथड से ड्रॉ करना। चलो, सबसे पहले हम स्क्वायर लिखेंगे, सेंटर में सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, और यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनेंगे। फिर अप साइड और डाउन साइड ये भी बॉन्ड बनता है। तो वापिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज स्क्वायर। ओके, सेंटर में लेंगे हम कोबाल्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन। ओके, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। अंडरस्टूड? इस ऑक्टाहेड्रल शेप में एमाइन थ्राइस और NO2 थ्राइस दो डिफरेंट लिगेंड 3:3 रेशियो में है। ओके, तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन में दिख रहे हैं आपको, आपने देखा यहाँ पे NH3 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 कंटिन्यूअसली आए, और सामने साइड आएंगे NO2, यहाँ भी आएगा NO2, यहाँ भी आएगा NO2। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेसियल स्ट्रक्चर। उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, फैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज फेसियल अरेंजमेंट। क्या कहेंगे? फेसियल। क्यों इसको फेसियल क्यों कहते हैं? ओके, तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल शेप में सेम लिगेंड सेम फेस पे होते हैं। ये जो सेम लिगेंड है ना, वो किस पे होते हैं? सेम फेस पे होते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये स्क्वायर है, बराबर, ये स्क्वायर है, बराबर। ये जो पूरा स्क्वायर है ना, स्क्वायर, उस स्क्वायर को कहा जाता है मेरिडियन। क्या कहा जाता है? मेरिडियन। तो इस स्क्वायर वाले पार्ट को कहेंगे बच्चों मेरिडियोन। ओके, ठीक है। और इस मेरिडियन पर डिफरेंट 8 फेजेस होती है। डिफरेंट कितनी फेजेस होती है? 8, बराबर। कैसे? मैं समझाता हूं। सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसा, देखो आप यहाँ पे एमाइन 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 सेम लिगेंड है, तो सपोज एमाइन से नीचे वाले दोनों एमाइन की साइड में ऐसे एक शेड ड्रॉ करूं, तो ये हुआ पहला फेज, बराबर। ओके, इसे क्या कहते हैं? फेज। देखो, ये जो एमाइन सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड, वो फेज पर आए हुए हैं। द सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फेज। यहां भी देखो, आप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा, नाइट्रो सेम लिगेंड भी इस ऑक्टाहेड्रल शेप की एक ही फेज पर आए हुए हैं। ये जो नाइट्रो लिगेंड है ना, वो ऑक्टाहेड्रल शेप की सिंगल फेज में होते हैं। किसमें होते हैं? सिंगल फेज में। सो नाइट्रो लिगेंड इज प्रेजेंट at single phase, okay, of octahedral shape. It is known as facial. आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ? फेज की पोजीशन बता रहा हूँ। सिंपली आप सोचिए ना, यहाँ पे रफ में समझाता हूँ। देखो, ये कोई स्क्वायर हुआ जिसको मैं कहता हूँ मेरिडियन। क्या कहता हूँ? मेरिडियन। अच्छा, इस मेरिडियन के ऊपर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वो कितने फेजेस बनाएगा? तो देखो, ये पीछे की साइड पहला फेज, फिर राइट साइड दूसरा फेज, फिर हमारी साइड तीसरा फेज, और लेफ्ट साइड चौथा फेज।
तो ऊपर जुड़ा हुआ लिगेंड मेरिडियन के साथ कितने फेजेस देता है? 1 2 3 और पीछे वाला 4। फिर नीचे भी एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो भी कितने फेजेस देगा? 1 2 3 4। तो कहने का मतलब इतना ही है, आप समझ सकते हो ऑक्टाहेड्रल शेप में नाम क्यों ऑक्टाहेड्रल रखा, उसका रीजन है उसमें 8 फेजेस हैं। कितनी फेजेस है? 8। तो MX3L3 में कहना ये चाहते हैं कि अगर तीनों सेम टाइप ऑफ लिगेंड फेज पे हैं, फेज का मतलब है देखो आप, ये पहला फेज और दूसरा फेज, टोटल 8 होते हैं, तो फेजिस पर अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड है तो उसे कहेंगे फेशियल, बराबर। दूसरी का नाम है मेरिडियोनल। मेरिडियोनल, उसको शॉर्ट में लिखते हैं मर। तो मेरिडियोनल क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों एमोनिया, एमोनिया और एमोनिया, तो तीनों सेम टाइप ऑफ लिगेंड स्क्वायर पे ही है। किस पे है? स्क्वायर पे। इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं या फिर उसको मेरिडियन कहते हैं। ओके, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहेंगे मेरिडियन। क्या कहेंगे? मेरिडियन। अंडरस्टूड? ओके, तो मेरिडियनल शेप किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल, if same type of ligands are present on meridional part of the octahedral shape, so it is known as meridional isomer. समझ में आया? If same types of ligands are present on meridian of octahedral shape, it is known as meridional isomer. फेजिस पे हो तो फेशियल, और स्क्वायर दैट मीन्स मेरिडियन पे तीनों लिगेंड हो तो मेरिडियनल टाइप ऑफ आइसोमर। अंडरस्टूड? सो दिस इज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल शेप। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वेनेडियम, मैंने सोचा कि उसका चार्ज मैं +2 लेता हूँ, +2, फिर साइड पे लेता हूँ 3 ब्रोमाइड मतलब Br थ्राइस, और उसकी बगल में ले रहा हूं मैं सपोज साइनाइड थ्राइस। ओके, तो आप ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट कर लो, वेनेडियम 2, ब्रोमाइड 3 दैट मीन्स -3, साइनाइड 3 इट इज -3, तो 2 में से 6 जाएगा तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 4-। ओके, ओवरऑल चार्ज विल बी 4-। तो इसे कहते हैं बच्चों MX3L3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें इतना याद रखो, the complex or coordination compound which having same formula, that means chemical formula, same chemical bond also, but the spatial arrangements are different, it is known as, क्या कहेंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो, यह आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सिर्फ स्क्वायर प्लानर में आएगा, टेट्राहेड्रल में आएगा नहीं। ओके, टेट्राहेड्रल शेप में देखने को मिलता नहीं है। अंडरस्टूड? चलो, इसके साथ साथ इंटेक्स में एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा है कि भाई टेट्राहेड्रल शेप में ये आइसोमेरिज्म क्यों देखने को नहीं मिलता है? Why geometrical isomerism cannot seen in tetrahedral shape? तो उसका रीजन मैं समझाता हूँ। रीजन ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं बनाता हूं, आप देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं बनाता हूं तो उसका शेप कुछ ऐसा आएगा, बराबर। हर एक बॉन्ड का एंगल कॉमन है, वो है 109.28 डिग्री। तो एवरी लिगेंड के लिए, हर एक लिगेंड के लिए बाकी के तीनों सेम है।
आपको 3D शेप को 2D में ड्रॉ किया है, इसलिए ऐसा लगेगा कि नीचे के 3 अलग है, ऊपर का अलग है। ऐसा नहीं है। ओरिजिनल टेट्राहेड्रल शेप में हर एक लिगेंड के लिए 109.28 डिग्री पे किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो लिगेंड मिलेगा ही। यहाँ पे हर एक लिगेंड के लिए कोई नजदीक का लिगेंड नहीं है, कोई दूर का लिगेंड नहीं है, जियोमेट्रिकल रिलेशन ही नहीं है। ये इतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि हर एक लिगेंड के लिए सब लिगेंड सेम पोजीशन में है। इसलिए दो डिफरेंट लिगेंड आए तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन अगर स्क्वायर प्लैनर शेप है, कंपैरिजन करूं तो ज्यादा समझ में आएगा। स्क्वायर प्लैनर शेप है तो यहाँ पे दो टाइप के पोजीशन बनते हैं। पहला पोजीशन आइदर हमारे साथ, दूसरा पोजीशन और हमारे सामने। समझ में आया? क्यों स्क्वायर प्लानर में देखने को मिला? उसका रीजन है कि अपने नजदीक वाले लिगेंड होते हैं और अपने सामने वाले भी लिगेंड होते हैं। समझ में आया? सो व्हाई टेट्राहेड्रल शेप में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता? क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में हर एक लिगेंड से सेम एंगल से दूसरा लिगेंड जुड़ा है। यहाँ मोलिकुलर सिमेट्री पाई जाती है। We cannot compare the position, but in square planar shape we have two positions, adjacent position and diagonal position, and that's why square planar shape has geometrical isomers but tetrahedral shape has not geometrical isomers. Okay, चलो इसके साथ साथ थियरी में आपको ऐसा बताया है कि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें चारों लिगेंड डिफरेंट हो। ओके, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा यस। तो कैसे और कितने? तो इफ ऑल द फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, इफ ऑल द फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट तो भी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। इसके डिफरेंट 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। हमारी टेक्स्ट बुक ने बताया है कि ये तीनों आइसोमर्स क्या आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स वो लोग हमें पूछ सकते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के आइसोमर्स। ओके, सो लेट अस सी। तो सेंट्रल एटम आएगा बच्चों यहाँ पे M। मैं यहाँ पे स्क्वायर प्लैनर शेप ड्रॉ करता हूँ। कैसा शेप है ये? स्क्वायर प्लैनर। उसमें पहली पोजीशन आप ऐसा करो, A और B ले लो। तो सामने की साइड लेते हैं C और D। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। A और B ऐसा ही रहेगा, CD की जगह पे हो जाएगा DC। सेंट्रल एटम मेटल हो तो देखो दो आइसोमर्स तो आपको एवे मिल गए, मतलब ए बी रखा, लिया CD और लिया DC, बराबर। तीसरा आइसोमर क्या होगा? फिर से मैंने क्या किया, ए बी ऐसा ही रखा, पहले लिया CD और उल्टा करके क्या कर दिया, DC। अब आएगा बच्चों तीसरा आइसोमर जो स्पेसिफिक है। उसमें ए और बी नजदीक लेते थे, उसकी जगह ए और बी आमने सामने ले लो, तो बचा क्या, CD बचा ना। ओके, ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। इफ ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो 4 आइसोमर्स आएंगे। फिर से ए बी 2 बार ले लो, CD और DC कर दिया, और A के सामने भी ले लो तो CD बाकी जगह पे रखना है। आपको लगा सर ये रट्टा मारे, बिल्कुल नहीं, आपको मैं रट्टा कभी नहीं मरवाता। देखो कैसे, यहाँ लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि यहाँ पे आपने A के सामने दिल्ली लिया था पहले में, अभी A के सामने चेन्नई लिया, अभी A के सामने आप बॉम्बे लोगे, तो आपने देखा A को सभी चॉइसेस मिली है। क्या मिली? दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे। ओके, तो इसे कहते हैं बच्चों इस टाइप का आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा कहा जाता है
कि ABCD में अगर मैं इसे सिस कहूं तो बगल वाला क्या होगा, ट्रांस। ओके, 1 मिनट। अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूं, पहले और दूसरे की, तो उसमें ऐसा है स्टूडेंट्स, किसी भी दो लिगेंड को आप फोकस करके नाम बना सकते हो, किसी भी दो लिगेंड को फोकस करके, समझ लो इसका नेमिंग भी होता है। हाँ, कोई भी दो लिगेंड को फोकस करके नेमिंग करें। आपने देखा ए और बी को मैंने चूज किया है, ए और बी लिगेंड की कंपैरिजन को हम चूज करेंगे, वो नियर बाय पोजीशन में है तो आएगा सिस और सिस। अब वो दोनों फ्रंटियर पोजीशन में है तो उसे कहेंगे ट्रांस। तो हमारी टेक्स्ट में सिर्फ इतना कहा है कि टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें से 2 सिस होंगे और तीसरा ट्रांस होगा। लेकिन कैसे? तो आप कोई भी लिगेंड पसंद कर लो, कोई भी दो लिगेंड पसंद करो। फिर से जैसे मैंने पसंद कौन सा किया है लिगेंड, ए और बी, तो ए और बी लिगेंड पर ही फोकस करो। ए और बी एक दूसरे के नियर बाय पोजीशन में है तो दो स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे, सिस। और ए और बी दोनों फ्रंटियर पोजीशन में है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस। तो डोंट रेक्टिफाई, इतना याद रखो कि दो सिस आइसोमर्स होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर होता है। सो इट इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आज इतना रखते हैं, कल और एक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।